آگے آ جاؤ بیٹا آگے آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے سامنے آ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہاجرهم دون الحسین علیہ السلام. صلوات علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعمین له على ذلك. اللہم لنا نسابت التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله. اللہم لعنهم جميعا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فہو منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. صلوات علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مولانا کو تاخیر ہو گئی شاید نہیں آ پائیں گے، اس وجہ سے 10 منٹ فضائل کے اور پھر باقی مسائل بیان کر کے ذکر کو مکمل کروں گا. ایک سلوات بھیجیں محمد علی اللہم صلی علی محمد. ذکر ابوالفضل عباس ہے، اور یہ ابوالفضل عباس کی ہستی وہ ہے کہ یہ عام بشر نہیں بتا سکتا کیا ہے عباس. معصوم بتائیں گے کہ کیا ہے عباس، اور معصوم کی زبان آ رہی ہے اور کیا بیان کر رہے ہیں مولا کہ چھٹے امام سے یہ زیارت ہے. جو مولا عباس کی جو زیارت نامہ ہے یہ چھٹے امام سے آیا ہے، اور چھٹے امام اس زیارت نامے میں مقام عباس کو بیان کر رہے ہیں، اور 7 سلام سے زیارت کا آغاز کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین وانبیاء المرسلین وعباد الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما تقتضی وتروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. امام نے 7 سلام کیے. کیا فرمایا؟ چھٹے امام زیارت میں فرما رہے ہیں کہ اے عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو، اے عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو. اور پھر فرمایا وہ ملائکۃ المقربین، اور اللہ کے مقرب ترین ملائکہ کا سلام ہو. جمیع شہداء، اور تمام کے تمام شہداء کا سلام ہو. جمیع شہداء و صدیقین، اور تمام کے تمام صدیقین کا سلام ہو. اور پھر فرمایا وہ زاکیات الطیبات، اور تمام پاک اور پاکیزہ لوگوں کا سلام ہو. یہ سلام کیے جا رہے ہیں، 7 سلام آ رہے ہیں ابوالفضل عباس پہ. اچھا اللہ ہر ایک پر سلام نہیں بھیجتا، اللہ ہر ایک پر سلام نہیں بھیجتا. اللہ سلام کس پر بھیجتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں نبیوں کا ذکر کیا. سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو دونوں عالمین میں. سلام علی آدم، سلام ہو آدم پر. اور پھر جب جناب عیسیٰ کی باری ہوئی تو جناب عیسیٰ کے بارے میں فرمایا سلام علیہ یوم ولدت و یوم یبعث و یوم یبعث حیا. فرمایا جناب عیسیٰ پہ جب سلام کی بات آئی جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم یبعث حیا. فرمانے لگے کہ مجھ پہ 3 وقتوں میں اللہ کا سلام ہو. جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر اللہ کا سلام، مجھ پر اللہ کا سلام، اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اس دن مجھ پر اللہ کا سلام ہو. تو آدم پہ 1 وقت میں سلام، نوح پہ 2 عالمین میں سلام، عیسیٰ کو 3 وقتوں میں سلام. یہ ہے وقت 3 وقتوں میں سلام ہو رہا ہے، مگر اللہ ہر ایک پہ سلام نہیں بھیجتا. عباس پہ کب تک سلام؟ زیارت نے فرمایا فیما تقتضی وتروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. فرمایا کہ اے عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو. کب تک سلام ہو؟ جب جب سورج طلوع کرے، جب جب سورج غروب کرے، جب جب سورج غروب کرے. عباس آپ پر ہر لمحے اللہ کا سلام ہو رہا ہے. یہ ہستی ہے کہ ہر لمحے اللہ کا سلام ہو رہا ہے. پھر کیا فرمایا؟ سلام اللہ وسلام ملائکۃ المقربین، اللہ کے مقرب ملائکہ کا سلام. اب ملائکہ کے بارے میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ ملائکہ کی تعداد نہیں پتہ. ملائکہ کی تعداد دن بدن ملائکہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ملائکہ اتنے ہیں کہ ان کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ملائکہ میں تو انتقال بھی نہیں پایا جاتا.
अब मलाइका की फहरिस्त निकालते जाए, जो जो मलक में आता जाएगा सबका सब अब्बास पे सलाम भेजते जा रहे हैं। मलाइका की तादाद मुअय्यन नहीं है, और ये जिब्राइल तो मलाइका का भी सरदार है ना, जिब्राइल मलाइका का सरदार है। जिब्राइल का काम क्या है? रसूल अल्लाह के पास कुरान लेकर उतरता है। जब जिब्राइल रसूल अल्लाह के पास कुरान की आयतें लेकर उतरते हैं, अब इमाम कह रहे कि तमाम मलाइका का सलाम है अब्बास पर, तो पता चला जिब्राइल जब आयतें लेकर वाह 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 सलाम भेजने के सिर्फ कुरान की आयतें लेकर नहीं उतरता, जिब्राइल अब्बास पर सलाम भेजने के लिए भी उतरते हैं। या फरमाया सलामुल्लाहि व सलामु मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अंबियाइल मुरसलीन, अल्लाह के तमाम नबियों का सलाम, अल्लाह के तमाम रसूलों का सलाम, तमाम अंबिया का सलाम अब्बास पर, रसूलों का सलाम अब्बास पर। अब सवाल है कि नबी कौन है, रसूल कौन है? नबी वो है कि जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया, रसूल वो है कि जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया। नबी अल्लाह की हुज्जत का नाम है, रसूल अल्लाह की हुज्जत का नाम है, अंबिया भी अल्लाह की हुज्जत है, रसूल भी अल्लाह की हुज्जत है। और इमाम फरमा रहे कि तमाम अंबिया का सलाम, तमाम रसूलों का सलाम, तमाम रसूलों का सलाम। अब समझ में आया खुदा की हुज्जत है, जिसका सलाम करे ऐसी हुज्जत। फिर फरमाया हर अब्दे सोले बंदे का सलाम हुआ अब्बास पर। अब जितने अब्दे सोले बंदे हैं, अब कायनात में जो जो अब्दे सोले है उसका सलाम है अब्बास पर, यानी तमाम नेक लोगों का सलाम हुआ अब्बास पर, अब्दे सोले का सलाम। और फिर फरमाया तमाम के तमाम शहदा का सलाम, वो जमीय शोहदा यानी तमाम के तमाम शोहदा। ये जमीयन का लफ्ज बता रहे कि आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी शहीद होंगे, ये लफ्ज जमीयत बता रहे कि तमाम शोहदा शामिल हैं। तमाम शोहदा सलाम भेज रहे हैं ज़ाते अब्बास पर, तमाम शोहदा ज़ाते अब्बास पर सलाम भेज रहे हैं। अब्बास भी तो शहीद है ना, अब्बास भी शहीद है, बाकी जितने शोहदा हैं वो अब्बास पर सलाम भेज रहे हैं। और इनमें फर्क क्या है? चौथे इमाम ने फरमाया इन्ना लिल अब्बास इंदल्लाहि तबारक व तआला मंजिलतन यग़बितुहु जमीउ शुहदा यौमल क़ियामा, कि अब्बास का मकाम व मर्तबा ये है अल्लाह के नज़दीक कि क़यामत वाले दिन तमाम के तमाम शुहदा निगाहे रश्क से देखेंगे और ये सोचेंगे कि क्या मकाम है। और इमाम क्या फरमा रहे हैं? इन्ना लिल अब्बास, ये जो लाम आया है ना अब्बास के साथ, ये खास आया है, ये मखसूस कर रहा है अब्बास को, यानी मकाम सिर्फ और सिर्फ अब्बास का ऐसा है कि जिस पे तमाम शोहदा रश्क करेंगे। और ये शोहदा में कौन कौन आएंगे? हमजा जैसा शहीद बिन शोहदा में हमजा है कि जो इमाम हुसैन से पहले सैयद शोहदा कहलाया करते थे। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हमजा वो है कि जो रसूल अल्लाह जो इमाम हुसैन की शहादत से पहले सैयद शुहदा कहलाते थे। और कौन कौन शुहदा में आता है? हमजा भी शहीद है, जनाब जाफर तैयार भी शहीद है, हत्ता के अली अकबर भी उन शहीदों में शामिल हैं, अली अकबर भी उन शहीदों में शामिल हैं। और इमाम कह रहे हैं कि शहीदों में अब्बास का वो मकाम है कि जिसमें कोई और शरीक नहीं है, यानी कोई शहीद जितने भी आला दर्जे पे क्यों ना चला जाए, मकाम में अब्बास के बराबर नहीं हो सकता। ये मकाम सिर्फ अब्बास के लिए है, अल्लाह खुद ला शरीक है, जो खुद ला शरीक है शोहदा में जिसे ला कि सिर्फ शोहदा का सलाम नहीं बल्कि सिद्दीकीन का सलाम हो, यानी तमाम के तमाम सिद्दीकीन का। सिद्दीकीन कौन होते हैं? इमाम कह रहे हैं कि सिद्दीकीन का सलाम हुआ अब्बास पर। इसका मतलब मानना पड़ेगा ना अब्बास ऐसे सिद्दीक का नाम है कि जिसपे सिद्दीकीन सलाम भेज रहे हैं। और ये वो अब्बास है कि जिन पर सिद्दीकीन का सलाम हो। और मौला अब्बास की सदाकत के बारे में क्या कहना? मौला अब्बास की सदाकत क्या है? ये वो अब्बास हैं
کہ جو حسن و حسین کی مائیت میں رہے ہیں، مولا علی کی مائیت میں رہے ہیں، فاطمہ جیسی صدیقۃ الکبریٰ نے اپنا بیٹا کہا ہے، جنہیں فاطمہ جیسی صدیقۃ الکبریٰ نے اپنا بیٹا کہا، حسن و حسین صدیق ہیں، علی صدیق ہیں، ایسے صدیقوں کی مائیت میں پلے ہیں حضرت عباس، تمام کے تمام صدیقین کا سلام ہو۔ امام نے کیا کہا کہ صدیقین کا سلام ہو عباس پر۔ تو ایک بات تو امام نے خود ہی بتا دی کہ اب کسی کے صدیق ہونے پہ اب اگر کوئی بھی صدیق ہوگا اس کی ایک علامت تو یہ ہوگی وہ عباس پر سلام بھیجتا صدیق ہونے کی پہچان کیا ہے، کسی کے صدیق ہونے کی علامت کیا ہے کہ کوئی اس وقت تک صدیق نہیں ہو سکتا جب تک وہ عباس پر سلام نہ بھیجے۔ اور کیا فرمایا، جمیع شعراء و صدیقین والزاکیات الطیبات، تمام پاک اور پاکیزہ لوگوں کا سلام۔ یہ پاک اور پاکیزہ لوگ کون ہیں؟ الفاظ بدل کے اگر کہا جائے تو امام نے کہا کہ تمام حلال زادوں کا سلام ہو۔ امام نے کیا کہا کہ جو حلال زادہ ہوگا وہ عباس پر سلام بھیجے گا، جو بھی حلال زادہ ہوگا وہ عباس پر سلام بھیجے گا۔ ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ علی کی محبت بتاتی ہے کیا حلال ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ علی کی محبت یہ فیصلہ کرتی ہے کون حلال ہے کون حرام ہے۔ امام نے بتایا کہ صرف علی کی محبت حلال و حرام نہیں بتاتی، عباس پہ سلام بھیج کر بھی پہچان یہ 7 سلام امام جعفر صادق نے مولا عباس پہ کیے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ امام کی مزاج میں کروٹ آئی اور اسی زیارت نامے میں امام نے فرمایا لعن اللہ من جہلہ بحرمتہ، مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو عباس آپ کے حق میں جاہل رہ گیا۔ لعنت کرے اس شخص پر جو عباس آپ کے حق میں جاہل رہ گیا، جو آپ کے احترام کو ہلکا سمجھے۔ امام نے کیا کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جو عباس کے حق میں جاہل رہ گیا، جاہل رہ گیا۔ اس کا مطلب حق عباس سمجھنا واجب ہے، سمجھنا واجب ہے۔ امام کا یہ جملہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ جس طرح 14 معصومین کی معرفت واجب ہے، عباس کی معرفت بھی واجب ہے۔ اگر عباس کی معرفت نہیں ہے، جو عباس کے مقام کو ہلکا سمجھے، احترام کو ہلکا سمجھے، عباس کے حق میں جاہل رہے، امام کہہ رہے ہیں اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو لعنت کا ایک اور اصول پتا چل گیا کہ جو ذکر عباس سے فرار کرتا نظر آئے، لعنت اس کے پیچھے، جو ذکر عباس سے دور بھاگے، لعنت آتی ہے اس کے پیچھے۔ یہ مقام و مرتبہ کیسا ہے حضرت عباس کا؟ اب ایسے ہے کیا کہ جو بھی عباس آپ کے حق میں جاہل رہ گیا، اب حق عباس کیا ہے؟ حق عباس بہت بلند ہے۔ اور چھٹے امام نے جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ کانا امون العباس نافذ البصیرہ و سلب الایمان، عباس نافذ البصیرت بھی ہے اور ایمان کی ریڑھ کی ہڈی کا نام ہے۔ عباس ایمان کی ریڑھ کی ہڈی کا نام ہے۔ اب یہ ایمان کی ریڑھ کی ہڈی ہے عباس، تو پہلے فیصلہ تو کر لیا جائے کہ یہ ایمان ہے کیا، یہ ایمان کیا ہے؟ بھائی عباس ہے سلب الایمان، اور سلب الایمان زیب دینا، سلب الایمان ہونا اسی کو زیب دیتا ہے کہ اس کا بابا کل ایمان ہونا۔ اختتام ہو رہا ہے پہلی زیارت کا، اس میں کیا جملہ ہے؟ لعن اللہ، زیارت میں جملہ ہے کیا؟ قتل اللہ امتا قتلتکم بالایدی والسن۔ امام فرما رہے ہیں چھٹے امام زیارت کے اختتام میں کہ اللہ اس شخص کو قتل کرے، کس شخص کو؟ کہ جو عباس آپ کو فرمائے قتل اللہ امتا قتلتکم بالایدی والسن، اللہ اس شخص کو قتل کرے جو عباس آپ کو ہاتھوں سے اور زبان سے قتل کر رہا ہے۔ جس نے عباس کو ہاتھوں سے قتل کیا، جس نے عباس
ज़बान से कत्ल किया। ज़ियारत नामे का जुमला है। छठे इमाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह उसे कत्ल करे कि जिसने अब्बास को हाथों से कत्ल किया, अब्बास को ज़बान से कत्ल किया। अब सवाल ये है कि जो करबला में आए थे उन्होंने तो हाथों से कत्ल किया। जो हाथों से कत्ल करे वो तो करबला में थे। अब ये ज़बान से कत्ल कौन कर रहा है? ये ज़बान से कत्ल करने वाले कौन है? फिर इमाम ही का जुमला है, लान अल्लाहु मन जहिला हक़का वस्तख़फ़ा बिहुर्मतिक। मौला अब्बास की ये वो ज़ियारत है कि जो मौला अब्बास की ज़री के पास खड़े होकर पहली ज़ियारत पढ़ी जाती है। क्या मकाम व मर्तबा है हज़रत अब्बास का, इतना मकाम व मर्तबा है कि जिसे अल्लाह जैसा इमाम मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह से मांग रहा है। कायनात को जो देता है, खुदा से जिसने कभी कुछ नहीं मांगा उसने अल्लाह से मांगा है तो अब्बास मांगा है। क्या कहा? हाथों को बुलंद करके कहा, परवरदिगार ऐसा फर्जंद अता कर जो हुसैन का नासिर बने। इमाम हुसैन के लिए अब्बास को तलब किया है मौला अली ने। जब मौला अब्बास इस दुनिया में आए, मौला अब्बास को अपने हाथों पे उठाया, एक मर्तबा चेहरे को देखा और देख कर फरमाने लगे, हाँ है तो बिल्कुल वैसा ही जैसा खुदा से मांगा था। जनाब अब्बास को मौला अली ने अल्लाह से हुसैन इब्न अली के लिए मांगा था कि मेरी नियाबत में हुसैन का नासिर बन जाए। जब कम सिन थे मौला अब्बास, मौला हुसैन मस्जिद में मौजूद थे, मौला अली खुतबा दे रहे थे, जनाब कंबर पर बैठे हुए थे। इमाम हुसैन ने कहा, बाबा मुझे प्यास लगी है। बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। एक मर्तबा मौला ने इशारा किया, ऐ कंबर हुसैन प्यासा है, हुसैन के लिए पानी लेकर आओ। उधर जनाब कंबर उठ के चले, उधर से जनाब अब्बास उठे और तेज कदम दौड़ते हुए घर आए और आकर कहने लगे, ऐ अम्मा जल्दी कीजिए, मुझे पानी का जाम दे दीजिए। जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, ऐ मेरे लाल अब्बास आपको क्या प्यास लगी है? आप प्यासे हैं? फरमाया, अम्मा मैं प्यासा नहीं हूँ, मेरा मौला हुसैन प्यासा है। क्या मेरा मौला प्यासा है? एक मर्तबा जाम दिया, आबे जाम लिया और एक मर्तबा तेज कदम। मौला अब्बास ने अपने सर पे आबे जाम को रखा और इतना तेज कदम दौड़ के मस्जिद में आए। जैसे ही मस्जिद में आए, सारा पानी कूसे का छलक के गिर गया। जैसे ही मौला हुसैन की खिदमत में आए, अब जो कूसे को सामने पेश किया, अब जो कूसा सामने पेश किया, तो देखा कूसे में पानी मौजूद नहीं था। मौला अली ने जब ये मंजर देखा, मौला की आंखों में आंसू जारी हो गए। न जाने मौला के जहन में कौन सा मंजर आया होगा। वही नहीं मौला ने कहा होगा कि एक कोशिश अब्बास इसी तरह करेगा, हुसैन के लिए पानी लेकर आएगा। जैसे आज पानी ना ला सका, उसी तरह पानी हुसैन तक नहीं पहुंच सकेगा। ये वाकया बचपने का था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ता गया। जनाब उम्मुल बनीन ने अपने बेटे को बुलाया, कहा, मेरे बेटे अब्बास, हुसैन को कभी भाई कह के न पुकारना, हमेशा हुसैन की ताज़ीम करना। और हाँ अब्बास, ऐसा न हो कि कभी हुसैन को कोई सहमत न होने पाए। अब्बास तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे होते हुए कोई सहमत हुसैन को उठानी न पड़े। एक मर्तबा मौला ने कहा, अम्मा आप बेफिक्र रहिए, मैं जो आपने मुझे नसीहतें की हैं, मैं नसीहतों को पूरा करूंगा। और जब 28 रजब को काफिला जाने लगा, तो एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन चलते हुए काफिले को रोकने आई और काफिले को रोक कर कहा कि अब्बास जरा मेरे करीब आओ। एक मर्तबा अब्बास को बुलाया, एक हाथ अब्बास का कब्रे नबी पे रखा, एक हाथ अपने सर पे रखा और सर पे कब्रे नबी पे हाथ रखकर फरमाने लगी, अब्बास ये क्या है? फरमाया कि ये कब्रे नबी है। कहा अब्बास ये क्या है? कहा अम्मा आपका सर है। कहा किस कब्रे नबी की? और मेरे सर की कसम खाकर कहो कि जब तक जिंदा रहोगे ज़ैनब की चादर के मुहावरे रहोगे। और एक जुमला फरमाया, ऐ अब्बास तुम जा तो रहे हो, ज़ैनब को मैं तुमसे लूंगी, हुसैन को मैं तुमसे लूंगी। ज़ैनब और हुसैन तुम्हारे आसरे पे हैं। एक मर्तबा रुखसत किया। बईद नहीं जनाब अब्बास ने कहा, हो अम्मा आप दुआ करना कि मेरे यही हाथ सलामत रह जाए। ये हाथ सलामत रहते तो ना ज़ैनब की चादर छिनती, ना हुसैन का बदन जख्मी होता। आ गई करबला। एक मर्तबा
मर्तबा नहीं, कई मर्तबा आए, कहने लगे आका मौला मुझे इजाजत दे दीजिए। जब इजाजत मांगी ना, मौला ने कहा अब्बास तू मेरी फौज का अलमबरदार है, मेरी फौज का सिपा सलार है, कहा मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। एक मर्तबा मौला अब्बास ने दाएं जानिब देखा, एक मर्तबा बाएं जानिब देखा और देख कर फरमाया ऐ आका कहाँ है वो फौज जिसका मैं अलमबरदार हूँ। तो मौला अब तो वो फौज भी खत्म होती जा रही है जिसका मैं अलमबरदार हूँ। अब सबके लाशें आना शुरू हो गए, और मोहम्मद के लाशें आ गए, कासिम का लाशा आ गया, एक एक करके लाशें आते गए। जनाब अब्बास कह रहे हैं मौला अब तो मुझे इजाजत दे दीजिए, इजाजत नहीं मिले। एक मर्तबा मौला अब्बास चले, जैसे खैमे की जानिब बढ़े, देखा 4 बरस की सकीना पानी का जाम लिए खड़ी है। ये कहकर कहने लगी ऐ चचा होठ प्यास से बड़े खुश हो चुके हैं, अब प्यास की बर्दाश्त नहीं होते। कहे चचा पानी कब आएगा, ऐ चचा पानी कब आएगा, जब असगर प्यास से मर जाएगा। एक मर्तबा मौला अब्बास ने सकीना को अपने हाथों पे बुलंद किया और हाथों पे बुलंद करके मौला हुसैन की जानिब बढ़ने लगे। उधर मौला हुसैन ने आता देखा, जैसे ही अब्बास को आता देखा, एक मर्तबा फरमाने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ परवरदिगार अब मेरा अब्बास भी मुझसे जुदा होने के लिए आ गया। एक जुमला कहा ऐ सकीना कहा चचा को अभी तो भेज रही हो, और मौला अब्बास से कहा अब्बास सिफारिश तो बड़ी अच्छी लेकर आए हो। अब्बास सिफारिश ले आए ना, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। और कहा सकीना अभी तो चचा को भेज रही हो, अभी जब कुछ देर के बाद शाम गरीबा आएगी, शिमिर तमाचे मारेगा, हर तमाचे पे चचा को पुकारती रहोगी, सकीना चचा नहीं आएगा। अजर तुम्हारा अल्लाह। एक मर्तबा रुखसत किया, मौला अब्बास को जब रुखसत किया गया ना, मौला अब्बास रुखसत होने लगे। मौला हुसैन ने एक हाथ में मश्क दी, एक हाथ में अलम दिया, फरमाया और एक टूटा हुआ नेजा दिया, जाओ अब्बास पानी लेने जा रहे हो। मौला अब्बास रुखसत हुए। जब मुख्तार ने जालिमों को गिरफ्तार करना शुरू किया तो जालिमों से पूछा ये बताओ करबला के बन में कोई ऐसा मंजर तुमने देखा कि जिस पर तुमको भी रोना आ गया हो। वो मलाउन कहता है कि हाँ एक मंजर ऐसा था कि जिस मंजर पे मुझे बहुत ज्यादा रोना आया। का कौन सा मंजर था? का वो मंजर और वो मरहला वो था कि जब हुसैन ने अब्बास को रुखसत किया ना, अब्बास जब जाने लगे तो वो मौका था कि हसरत भरी निगाहों से ज़ैनब ने हुसैन को देखा, हुसैन ने ज़ैनब को देखा और एक जुमला कहा हुसैन ने अब्बास आप तो जा रहे हो, अब मेरी ज़ैनब का क्या होगा। जनाब अब्बास रुखसत हुए और रुखसत होकर फुरात पर पहुंचे। एक मर्तबा मश्क में पानी भरा और पानी भर के जब अब्बास वापस चले तो मलाउनों ने कहा कि अगर पानी खयाम तक पहुंच गया तो जंग का नक्शा बदल जाएगा, तो क्या करें कि पानी खैमे में ना ले जाया जा सके। ऐसे में फौजों ने दूर दूर से हमला किया और मला ने 3 भाल का सनसनाता हुआ तीर कमान में जोड़ा, मश्क सकीना का निशाना लिया। अब जो तीर छोड़ा, तीर मश्क सकीना को चीरता हुआ अब्बास के सीने में जाके बेबस हो गया। बस तीर का लगना था, मश्क का सारा पानी बह गया, मौला अब्बास की आँख छूट गई। उलमा बयान करते हैं जब मश्क सकीना से पानी जुदा हुआ ना, ये पानी मश्क सकीना से अलग नहीं हुआ, अब्बास के जिस्म से रूह अलग हो गई। एक मर्तबा वापस मैदान में आए और जब हमला करना शुरू किया तो एक मलाउन ने मौला का दायां बाजू कलम कर दिया, कुछ फासले पे मौला का बायां बाजू कलम हो गया। जब दोनों बाजू कलम हो गए तो मलाउनों ने कहा कि अब तो अब्बास पे हमला करना आसान है, अब्बास के बाजू अब सलामत नहीं है। मलाउन ने कहा अब्बास के शाने कता हुए हैं, अभी अब्बास की आंखें सलामत है, जब तक आंखें सलामत है हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक मलाउन ने तीर कमान में जोड़ा, अब्बास की आंख पे तीर मारा, तीर का आंख पे लगना था। अब सवाल ये है कि अगर कोई रुमाल पे अगर कोई किसी की जानिब फेंके तो कुछ नहीं तो कम से कम हाथ से रुमाल को रोक लिया करता है। अब अगर किसी की आंख में रुमाल ना फेंका जाए, तीर फेंका जाए और तीर जब आया मौला के हाथ सलामत नहीं थे। मौला फरमाते हैं तीर मेरी आंख में लगा हुआ था, मैंने अपने सर को दाएं झटका, मैंने अपने सर को बाएं झटका, का तीर ना निकल सका। मैंने घुटने की आड़ में तीर को निकालना चाहा, का जब मैं झुका एक शकी ने पीछे से गुर्स पर हमला किया, का गुर्स मेरे सर पे आके लगा, बस गुर्स का लगना था ताकि मैं ज़ीन से गिरा। एक आवाज थी अरे आका आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इधर हुसैन ने कमर पे हाथ रखा और फरमाया अल्लाह इनका सरा सारी अब्बास हुसैन की कमर टूट गई। अजर कमर अल्लाह का अब्बास हुसैन की कमर टूट गई। एक मर्तबा मौला हुसैन लाशा अब्बास
में देर लग गई। ये देर क्यों लगी? जब मौला हुसैन रास्ते में थे तो रास्ते में एक मकान ऐसा आया कि जिस पे इमाम हुसैन की नजर पड़ी। मौला अब्बास का कटा हुआ बाजू जमीन से उठाया, अपने सीने से लगाया, आंखों से लगाया, फिर दूसरा बाजू उठाया, दोनों बाजू उठाकर लाशे अब्बास पे पहुंचे और एक मर्जिया पढ़ा। क्या मर्जिया पढ़ा? ऐ अब्बास, जो आंखें तेरे खौफ से जागा करती थी वो आंखें अब चैन से सोया करेंगी, और जो आंखें चैन से सोया करती थी अब वो आंखें रोया करेंगी, अब उन्हें चैन नसीब नहीं होगा। एक मर्तबा अब्बास का सर अपने जानों पे रखा और रखने के बाद कहा, ऐ अब्बास, क्यों बार बार सर हटा लेते हो? मैं तुम्हारा आका और मौला हूँ। फरमाया, मौला, अभी तो मेरा सर आपके जानों पे आया है, और जब आप जीन से गिरेंगे आपका सर किसके जानों पे होगा? तो अब्बास, मेरा सर मेरी माँ फातिमा के जानों पे होगा। एक मर्तबा मौला ने फरमाया, अब्बास कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। मौला ने फरमाया, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं आपका आखिरी दीदार कर लूं। मेरे चेहरे से, मेरे आंखों से खून को साफ कर दीजिए। आंखों से खून को साफ किया, आखिरी दीदार हुसैन इब्न अली का किया। फरमाया, मेरे लाशे को खैमे में लाने चाहिएगा। मैंने सकीना से वादा किया था पानी लाने का, मैं वादा न पूरा न कर सका, मैं पानी लेकर ना आ सका, और फरमाने लगे कि मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा। उलमा ने ये लिखा कि अब्बास ने ये जुमला कहा इसलिए फरमाया कि मौला जानते थे कि हुसैन इब्न अली का लाशा खैमे में नहीं जाएगा। जब हुसैन का लाशा खैमे में ना जाए, ये कैसे मुमकिन हो अब्बास का लाशा खैमे में चला जाए? एक मर्तबा मौला ने कहा, अब्बास, हमने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, हमने ख्वाहिश को पूरा कर दिया, अब तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। कहा, अब्बास, पूरी जिंदगी गुजर गई, तुमने मुझे भाई कह के नहीं पुकारा, आज आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे भाई कह के पुकारो। फरमाया, माँ ने कहा था कभी भाई ना कहना, एक बीवी की आवाज आई, ऐ अब्बास, आज भाई कह दो। मैं जानू, उम्मुल बनीन जाने, हुसैन को अब्बास ने कहा, है मेरा प्यासा भाई, हाय मेरा मजलूम भाई। अजरुकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमले। जब मौला हुसैन जीन से गिर चुके, शिमिर मलाउन इमाम हुसैन के सीने पे सवार हो चुका, इसने पुश्ते गर्दन जब खंजर चलाना शुरू किए, ये सर पे चलाता जाता था, ये सर पे चलाता जाता था। जब मुख्तार ने शिमिर को गिरफ्तार किया, बता शिमिर, जब तू खंजर मार रहा था तो मेरा मौला